Welcome to Study from Home, a program initiated by Kana Magan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from our home to your home. In today's video of 11th Standard Business Studies, we will be continuing our chapter, Formation of Company. Till now in this chapter, we have covered up how a company is formed from the scratch, the idea to its practical shape. If I'll be talking about very first what were the stages of formation of company, and after that I'll be coming on what topic that I am going to discuss today. So very first thing, as per the Indian Companies Act 2013, the three stages of formation of companies were, the very first stage was promotion. Promotion is the process that takes place from the scratch idea of the company and it's practically shaping into a company, and the person who does all these activities is known as the promoter, and the function of promoter we have already covered up in our previous video. So the very first stage in terms of formation of company is the promotion. The second stage in formation of company is incorporation. Incorporation. After the submission of documents MOA and AOA, one application for incorporation certificate is submitted to Registrar of Companies by the promoter, and after the issuing of incorporation of certificate, that company can commence its business activities. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन का. नाउ द वेरी मेन स्टेज फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. Subscription of capital. In today's video, we will be highlighted on this topic. If we are having idea of a joint stock company, then what are the legal formalities that we'll have to do for the allotment of shares and for the shareholding? Because from the beginning, when we started in forms of business organization, what exactly joint stock company is and how joint stock company is formed. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने ये पढ़ा है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि शेयर होल्डिंग कैसे इशू होती है, शेयर होल्डिंग का क्या प्रोसेस है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जॉइंट स्टॉक कंपनी का, मैंने आपको बताया था हाउ इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स एंड दैट ईच स्मॉल डिविडेंड इज नोन एज द शेयर्स. अब ये शेयर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये शेयर्स किस तरीके से खरीदे जाते हैं, ये शेयर्स किस तरीके से बेचे जाते हैं, दैट इज द मेन थिंग दैट वी विल हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो. अब the very first thing that is required for subscription of capital, any joint stock company will have to issue a prospectus. The very first thing that a company has to do is issuing the prospectus. Issuing the prospectus. अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, सर ये prospectus जो टर्म है इसका मतलब क्या है. देखिए, आप स्कूल आते हैं एडमिशन लेने के लिए, आप स्कूल में सबसे पहले वो से आपका वेलकम हुआ, आपने 500 रुपए दिए, आपको प्रोस्पेक्टस पकड़ा दिया गया. उस प्रोस्पेक्टस में आपको स्कूल की बिल्डिंग्स के बारे में, स्कूल के टॉपर्स के बारे में, स्कूल के टीचर्स के बारे में, स्कूल की फैकल्टीज के बारे में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज स्कूल ये चाहता है कि आप इस स्कूल में एडमिशन लें. सो दैट इज द सेम थिंग विद प्रोस्पेक्टस. Prospectus is the document through that a company invites the shareholders to its company. मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, मैं ऋषि केवल अपनी कंपनी शुरू करता हूँ, तो मेरा पहला स्टेप ये रहेगा आफ्टर द प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, मैं अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा दैट व्हाई यू शुड बाय माय शेयर्स, एंड आफ्टर दैट you will see my prospectus and you will be motivated to purchase my shares. The very first thing that a company has to do, a company will issue its prospectus. What is the prospectus? Prospectus is a document that invites the people for its shareholding. अब ऐसा तो नहीं है कि हवा में शेयर होल्डिंग कर दो, मैंने आज कंपनी बनाई, मैं आज आ जाऊं, मैंने प्रमोशन कर दिया, मैंने इनकॉर्पोरेशन कर दिया, मैंने शेयर होल्डिंग कर ली और मैं शेयर होल्डिंग का पैसा लेके भाग गया. तो मैं बता रहा था कि क्या
क्या हो अगर मैं आपके शेयर होल्डिंग का सारा पैसा लेके भाग जाऊं? तो उस चीज के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग को देखती है, एंड दैट इज मींस आफ्टर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस आई हैव टू गेट माय शेयर होल्डिंग अप्रूव्ड बाय सेबी। अब आप में से किसी को ध्यान हो, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सेबी, व्हाट एग्जैक्टली सेबी इज। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI stands for Security Exchange Board of India. After issuing the prospectus, company will have to take approval of the SEBI regarding the shareholding, and SEBI takes care of this thing that any of the information given to shareholder is not false in the prospectus, बिकॉज किसी भी तरह का फॉर्जरी, किसी भी तरह के फॉल्स स्टेटमेंट को रोकने का काम ये सेबी का है। इस वजह से जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको सेबी की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट योर जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द अप्रूवल ऑफ योर शेयर होल्डिंग, बिकॉज शेयर होल्डिंग को अप्रूव, इंडिया में जितनी भी शेयर होल्डिंग की कंपनीज हैं उनको अप्रूवल देने का काम करती है सेबी। सेकंड वर्क था आपका गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर द शेयर होल्डिंग। इसके बाद जो थर्ड जो काम है वो है आपका फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है दैट एक्ट एज अ इन्विटेशन फॉर्म फॉर द शेयर होल्डिंग। सो दिस प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड। अरे यार, तो थर्ड स्टेज जो थी वो थी आपका फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज अ इन्विटेशन फॉर द शेयर होल्डर्स। आफ्टर सीइंग द प्रोस्पेक्टस, एनी शेयर होल्डर डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। ठीक है, एंड दैट प्रोस्पेक्टस मस्ट बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड दैट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ दैट कंपनी। आफ्टर filing of the prospectus, you appoint the professionals. What is the meaning of appointment of professional and how appointing the professional will be helpful in subscription of capital? देखिए, आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज की हुई हैं। सारा काम प्रमोटर नहीं कर सकता, सारे काम डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, आपको ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपकी कंपनी के शेयर को परचेजिंग एंड सेलिंग करने के लिए, सिक्योरिटी सेलिंग परचेज करने के लिए आपकी ये प्रोफेशनली हेल्प करेंगे। तो आप फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? आप फोर्थ स्टेप में प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में? फिफ्थ स्टेप ये है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब आई थिंक मिनिमम सब्सक्रिप्शन टर्म से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। कैसे? हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन टर्म को पहले से कैसे जानते हैं? हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन टर्म यहाँ से जानते हैं कि जब एनी ऑफ द पर्सन विल हैव टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन अ पर्सन विल हैव टू परचेज सम पर्टिकुलर शेयर, उसको हमने क्वालिफिकेशन शेयर बोला था। अब क्वालिफिकेशन शेयर एंड मिनिमम शेयर का किस तरह से रिलेशन है? क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम शेयर का इस तरह से रिलेशन है कि अगर डायरेक्टर के पास वो मिनिमम शेयर का अमाउंट नहीं होगा तो दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो ऐसे ही फॉर टू कमेंस बिजनेस एक्टिविटीज या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फॉर द शेयर होल्डिंग, any company will have to have at least a minimum amount of shareholding, and that amount is 90% of its shareholding. अब इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल से। अब सपोज कीजिए आपकी कंपनी है कोई XYZ लिमिटेड। आपकी कंपनी की जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग थी वो कितनी थी? 10 लाख रुपीज। ठीक है, और 10 लाख रुपीज के लिए आपने क्या किया? 10 लाख रुपीज के लिए आपने 100 रुपए के 10,000 शेयर रिलीज किए। ठीक है, आपने 100 रुपए कितने शेयर रिलीज किए? आपने 100 रुपीज के
10,000 शेयर रिलीज किए, तो आपकी कंपनी बिजनेस एक्टिविटी तभी शुरू कर सकती है, इस इन्वेस्टमेंट को तभी यूज कर सकती है जब आपके पास इन 10,000 शेयर्स में से 90% शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो जाएं इसके कस्टमर्स के द्वारा। अब 90% शेयर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आपके 9 लाख रुपए के शेयर बिकने जरूरी हैं फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इफ you are unable to subscribe minimum 90% share, then you cannot commence your business activities। ठीक है, तो ये था पॉइंट आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद भी आपको कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस फॉलो करते हैं। वो ऑब्लिगेशन क्या है, 2 पॉइंट और रहते हैं, बताता हूं कौन कौन से। इसके बाद यानी कि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्वालिफाई कर लिया, आफ्टर दैट यू सेंड एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, मुंबई। मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में है वॉल स्ट्रीट। तो आपको इसके बाद यानी आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद यू सेंड एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। आपकी कंपनी यूएस में है तो आप एप्लीकेशन भेजेंगे वॉल स्ट्रीट, और आपकी कंपनी इंडिया में है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद क्या होगा, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये आप कब भेजेंगे, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। जब आपकी जो लिस्ट है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, वो क्लोज हो जाएगी, उसके 10 वीक्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना कंपलसरी है। और अगर 10 वीक्स के अंदर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आपकी शेयर होल्डिंग वॉइड हो जाएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, 8 डेज के अंदर जो जितना भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जो भी शेयर होल्डिंग का अमाउंट आया है, वो आपको आपके शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इशूइंग द प्रोस्पेक्टस पढ़ा कि किस तरह से कंपनी एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद यू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, एंड आफ्टर दैट यू फाइल अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, एंड आफ्टर दैट यू अपॉइंट द बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड प्रोफेशनल्स, एंड आफ्टर दैट यू think about the minimum subscription of share, because without subscribing a minimum amount of shares your company will not be able to commence its business activities. And after that you send an application to stock exchange, and if your application does not get approved, then you cannot commence your business activities. और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें, इतना कुछ होने के बाद वो होगा allotment of shares। It is the तो आफ्टर दिस, इसके बाद आप शेयर्स अलॉट करना चालू करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। ठीक है, लेकिन क्या हो कि आपने सपोज की दिया, आपने 10 लाख रुपए के शेयर निकाले थे, लेकिन आपके पास जो अमाउंट आया है वो उससे ज्यादा है। आपने जो शेयर होल्डिंग रिलीज की है वो है आपकी 10 लाख रुपीस की, लेकिन जो अमाउंट आपने रिसीव किया है वो अमाउंट आपने रिसीव किया है 12 लाख का। तो ये क्लियर गाइडलाइंस है दैट व्हाटएवर द अमाउंट that has been deposited as the shareholding, that must be kept in a separate bank account। यानी कंपनीज उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखती हैं और उसको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करती जब तक कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, और शेयर्स फुल्ली अलॉट होने के बाद जितना भी अमाउंट रिमेनिंग होता है वो इसके जो एप्लीकेंट्स हैं उनको वापस कर दिया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज में हमने क्या देखा, हमने देखा आपका फाइलिंग issuing the prospectus, SEBI approval, filing of prospectus, appointment of professional, minimum subscription, application to stock exchange and allotment of shares। इन सारे स्टेजेस को फॉलो करने के बाद, इन सारे लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रॉस करने के बाद योर कंपनी गेट्स एग्जिस्टेड एंड यू कैन कमेंस योर बिजनेस एक्टिविटीज, एंड दैट्स हाउ यू फॉर्म अ कंपनी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। स्टे होम, स्टे सेफ।